Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. Today, I have with me my old friend Kunal, finally joining in. And Kunal, how are you doing? All good? Good. All good here, Shikhar. Looking forward, discussing some interesting cricket. IPL is finally it's towards the later stages. Yes. Selection on the top of mind for all teams, and yeah, it's been like a busy week for cricket fans with all the World Cup squads being Selection news announced and coming. everything. Uh, So yeah, yeah, two-third of the IPL is done, Kunal. We still don't have any teams qualified. We still don't have any teams which have been besides eliminated. Rajasthan is qualified, right? Not officially, they have not qualified because there are But still usually, teams that can reach 18 points. Uh, true, that can. But usually, it has been since always, right? That if a team wins half their matches, they do qualify. This has been a thumb rule. yeah, Usually, 16. more than half. Yeah, More than half. If they've won 8 matches, they are through more or less. yeah, usually that happens, but 14 में भी कभी कभी क्वालिफाई होता है, 12 में भी होता है, तो विल हैव टू सी मतलब कि क्या होगा इस बार. बट हाँ या तभी राजस्थान लुक्स सेफ, बट you never know what happens in IPL. Things take yes. a turn at the last moment. अभी जैसे आरसीबी खेल रही है, we all thought that RCB is dead and buried, but the attitude and विराट कोहली has been really pumped up. मतलब जैसे वो खेल रही है, अगर वो मतलब आरसीबी फैंस वही सोच रहे होंगे कि अगर 2-3 मैच पहले से इस तरह से खेलते आरसीबी, तो आई मीन दे कुड हैव, दे आर कैरिंग लॉट ऑफ मोमेंटम एंड आईपीएल इज लॉट अबाउट मोमेंटम कैरिंग. तो जैसे आईपीएल अभी चल रहा है और आरसीबी का जो मोमेंटम रहा है, दे कैन इजिली विन द नेक्स्ट 3 मैचेस ऑल्सो एंड कम अप टू 14 पॉइंट्स. So, first I want to talk about RR versus SRH game. I think IPL peaked on at this game. Rajasthan Royals lost by 1 run, One run. 1 run, and we all were expecting a super over. We all were expecting, but Rovman Powell got out LBW. Uh, Now there are multiple conversations happening around this match. One is about the rules of cricket कि यहाँ वहां पे अगर रिव्यू में रॉवमन पावल नॉट आउट हो जाता तो भी राजस्थान रॉयल्स हार जाती. तो कुणाल, हैव यू heard about that case, और मतलब what's your take on it? Like that rule is a Yeah, lacuna that probably you can know, hurt a big team in World Cup. तो it can. It can. The fact that it can be given a dead ball as well. Yeah, hmm, thoda to hai. There will always be ifs and buts like these, hmm, but it's difficult to say. What best can be done from here. Given the rules of cricket, this was still justified. So I guess it's okay for now. Like hmm. I think these type of edge cases will always be there. You cannot always cover Yeah. for each and every. बट सर्टेनली थोड़ा कॉमन सेंस इनको अब जैसे रियलाइज हो रहा है, तो थोड़ा चेंजेस इमिडिएटली कर देना चाहिए मुझे लगता है, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स के पहले, क्योंकि वी मे सी समथिंग What would हैपनिंग. you propose then here should be done? Like, आई how थिंक can this be managed better? आई थिंक मतलब अगर जो भी रिजल्ट हुआ है, जैसे अगर वो सिंगल ले लिया उसने, और तो वो दैट सिंगल शुड काउंट, और इफ द बॉल हैज गॉन टू द बाउंड्री, देन दैट बाउंड्री शुड काउंट. Ball should not become dead if the umpire is raising his finger. It should only become dead when the play has stopped. अगर जब प्ले जब तक स्टॉप नहीं हुआ है, आई थिंक बेसबॉल किसी ने बोला है बेसबॉल में भी यही रूल है. तो बेसबॉल में भी वो रिव्यू करते हैं, तो यही रूल अप्लाई होता है कि जब तक प्ले स्टॉप नहीं होता तब तक बॉल को वो लोग डेड नहीं कंसिडर करते. सो दैट इज एन ऑल्टरनेटिव एक्चुअली फॉर दिस. बट लेकिन अगर इस बॉल डेड हो जाती तो RR could have got another ball, right? Would have got another ball. नहीं नहीं, they wouldn't have got another ball. That's the problem. There is no reball in this case. मतलब अगर जैसे रिव्यू होता है और अंपायर आउट देता है, तो देर इज द सेम बॉल इज कंसिडर्ड, मतलब कि डॉट बॉल, इट्स जस्ट कंसिडर्ड अ डॉट बॉल. दैट्स द प्रॉब्लम. तो वहां पे रॉवमन पावल, अच्छा, the run will not be there. हाँ, true, एक तो true. रॉवमन पावल, और एक था कि एसआरएच के पास तो रिव्यूज नहीं थे. तो एसआरएच के पास भी रिव्यू थे, बट अगर एसआरएच के पास रिव्यू नहीं होते, तो देर इज लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स. आई विल नॉट गो दैट मच इनटू दैट, बट वो जो गेम था उसमें बहुत कुछ हुआ कुणाल. तो अ, मतलब कि एसआरएच ने एक तो मतलब कि अपना यूजुअल फर्स्ट बैटिंग वाला स्टार्ट नहीं किया. फिर नीतीश रेड्डी कम्स, जो कि हार्दिक पांड्या का नेक्स्ट रिप्लेसमेंट जैसा लग रहा है. उसने आके एक अमेजिंग नॉक खेला, और मैं नीतीश रेड्डी के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि अभी तक उसने 2 50s मारे हैं, और दोनों मैचेस में हैदराबाद हैज वन बाय 1 रन एंड 2 रन. मतलब उसके नॉक्स जो हैं वो इतने क्रिटिकल
है, इससे ये प्रूव होता है। और ये दोनों नॉक्स तब आए जब हैदराबाद की बैटिंग कोलैप्स की है। कोलैप्स फॉर कर मी दी नीतीश रेड्डी इज वन ऑफ द फाइंड्स, द बेस्ट फाइंड्स ऑफ द टूर्नामेंट। लोग बोलेंगे ऑफ द शशांक, स्पिन। लोग बोलेंगे आशुतोष, मयंक यादव, बट फॉर मी अ प्लेयर हु कैन बैट एंड बोल, क्योंकि हम हार्दिक पांड्या को चढ़ा के रखे हैं ना, पेडेस्टल पे चढ़ा के क्यों रखे हैं, क्योंकि हमें हमारे पास और He कोई was the प्लेयर only नहीं guy मिल we रहे had, right? Since all these हैं। years, he has been the only guy who can bowl at Yes. 140 and bat. He has been the हाँ, only guy. तो द राइज ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी इन दैट वे इज वेरी हार्टनिंग। और आईपीएल ने ही शायद ये फाइंड हमें दिया है, दैट्स व्हाई वी वॉच आईपीएल। लोग बोलते हैं आईपीएल क्या है, क्यों देखते हो, बट पीपल हैव टू रियलाइज दैट आईपीएल इज ओनली गिविंग यू दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स, अदरवाइज इनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आशुतोष शर्मा और इनको डोमेस्टिक कोचेस ने हटा हटा दिया है अपने टीम से, तो इनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आईपीएल को छोड़ के। तो So वो I mean, हुआ। it's really good to see this हम्म। under 19 player coming from Andhra. I mean, he's 20 years old now, but a हम्म। young player हम्म। bowling, who can be a next fast bowling all rounder. It's really, really heartening हम्म। to see such players coming out of IPL. And that too is playing in a team with superstars, right? Already they have Klassen, they have Head, they have Cummins. यस। Everybody team of still is putting up performances, is still, holding the team up, saving He's them from still noticed defeat. among those names. He's still noticed Notice among among those names. That's great, actually. this is what helps young players, right? I mean, it's different playing under 19, playing in domestic, playing cup cricket, and from there coming to the international scene, right? But this guy is already playing with the best in the world, right? So for हम्म। him, he can come directly to the Indian team. He'll know how to handle pressure. अच्छा, ये तो हुआ मैच में। उसके बाद हमने देखा कि बहुत अच्छा फिनिशिंग किया नीतीश रेड्डी, क्लासन ने 200 रन बनाए। एंड लास्ट वीक वी वर सीइंग लॉट ऑफ गेम्स 250 260, बट इस वीक में हमें वो देखने को मिला नहीं 250 260। बट राजस्थान ने जैसे चेस किया तो इतना इजी चेस लग रहा था, स्पेशली आफ्टर बीइंग 0 for 2, एंड वी सॉ द विंटेज भुवी, भुवनेश्वर कुमार ऑफ 2012 स्विंगिंग द इन And स्विंग। even I started thinking, Bhuvi तो वापस फॉर्म में आ गया. He's bowling like he used to. Oh my God, wickets ले रहा है, इतने confidently bowling कर रहा है. That was refreshing, सच में. हाँ। हाँ, तो वो फॉर्म में आ गया था भुवी। और 0 for 2 के बाद लेकिन जायसवाल और पराग ने जैसे खेला है, मतलब सम ऑफ द शॉट्स वेर जस्ट माइंड ब्लोइंग। मैंने देखा जायसवाल का एक शॉट था जिसमें उसने कमिंस को छक्का मारा है, मतलब कि डीप फाइन लेग पे, फिर नटराजन Yeah, को उसने छक्का मारा है, they had a पराग ने 130 run नटराजन को छक्का partnership. मारा है। हम्म। Yeah. Plus, जैस it's really good to see Jaiswal come back to form. भाई मतलब उसका first of the season हाँ। इतना खराब था. People are talking about dropping him already. Even you did, I guess. हम्म। But it's हम्म। good to see that. Really good for the Indian team. नहीं तो opening हमारी लग जाती World Cup में. हाँ, T20 वर्ल्ड कप सिलेक्टेड टीम का उसने इज्जत रख लिया भाई, क्योंकि सब आउट ऑफ फॉर्म है। सिर्फ बुमराह और जायसवाल दो प्लेयर्स हैं जो एक्चुअली अच्छा खेल रहे हैं आफ्टर सिलेक्शन, बिकॉज सिंस द And टीम Chahal. हैज बीन सिलेक्टेड वी हैव सीन रोहित, सूर्या, और जो भी सिलेक्ट हुए हैं, मतलब कि सब लोग का खराब परफॉर्मेंस रहा है एक्सेप्ट हाँ, फॉर चहल ने जायसवाल। बहुत पिटवा दिया वैसे. हाँ. तो नितिन, आपने वो मैच देखा था, आरआर और एसआरएच वाला मैच? आपको कैसा लगा था हाँ वो तो मैच? मतलब जो हम वीकली रिव्यू कर रहे हैं तो इस वीक का आई थिंक बेस्ट मैच था वही। और हाँ। एक चीज जो है भाई कि कमिंस को तो पार्टनरशिप ब्रेक कभी भी करना है तो जैसे हम ठाकुर के बारे में बात करते थे इंडिया में, कर सकता है, कमिंस भी कर देता है भाई। कमिंस ने ही जिताया बेसिकली वो मैच। जो उसने हाँ। 19th ओवर किया या फिर 17th ओवर किया था नटराजन और कमिंस ने 3 ओवर कंटिन्यू, वही से वो हाँ। मैच चेंज ओवर ना, राजस्थान के लिए बहुत इजी चेज था वो। हाँ। I feel we don't talk enough about Cummins, भाई, but he actually contributes in key situations. Right? ऐसा बहुत बार होता है कि the team needs a tight over with less runs. Cummins delivers that. The team needs हम्म। wickets. Cummins and delivers that. So he leads from the front at least bowling standpoint. So he takes responsibility. हार्दिक पांड्या की नहीं जबरदस्ती के first over डाल रहा है या फिर हाँ। कुछ, but Cummins does contribute. He's not a T20 first bowler वैसा, लेकिन हाँ। he really adds a lot of value to the team in addition to his captaincy. और मैं एक और चीज बोलूंगा, नटराजन ने उस मैच में शायद 24 बॉल्स में से कुछ 20 यॉर्कर्स एग्जीक्यूट किए होंगे, मतलब कि ही इज सो कंसिस्टेंट एंड इज कमिंग बैक। पता नहीं वो लास्ट 3 4 साल शायद इंजरी की वजह से, या मतलब कि 2 3 साल वो इंजरी की वजह से ही वॉज नॉट लुकिंग एट हिज बेस्ट, बट ही इज अगेन कमिंग बैक टू हिज बेस्ट, एंड दैट इज सो गुड टू सी कि नटराजन, क्योंकि उसने वो यॉर्कर्स यॉर्कर्स दे के फंसा दिया। हिटमैयर का विकेट बहुत बड़ा था वहां पे, फिर कमिंस ने दो ब्रिलियंट ओवर्स डाले जैसे नितिन बता रहे हैं, तो 45 रन सिर्फ चाहिए थे लास्ट 5 ओवर्स में, तो इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इजी चेस, बट समहाउ दे वर चोक्ड बाय ब्रिलियंट एसआरएच बॉलिंग।
एंड वन गुड कॉल वाज नॉट गिविंग 19th ओवर टू भुवनेश्वर कुमार, उसका जो ट्रैक है वो देख करके हम्म। कमिंस। या दैट वाज अ गुड कॉल एंड भुवी बोल्ड अ ब्रिलियंट 20th ओवर। अच्छा, कुछ और मैचेस के बारे में डिस्कस करते हैं। आई थिंक इस मैच के बारे में काफी हमने डिस्कस कर लिया। एक और मैच जो मुझे लगता है इस, और मैं लकी हूं कि मेरे पास एक केकेआर फैन है और एक एमआई फैन है, बिकॉज द सेकंड मैच जो मुझे लगा इस वीक का सबसे बेस्ट मैच था वो केकेआर वर्सेस एमआई था, क्योंकि इसमें कुछ अनरियल चीजें देखने को मिली है। केकेआर वाज 57 फॉर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल एमआई लखनऊ से हार गई थी इसी वीक में, बट मैं उसको उतना बड़ा वो नहीं मानता हूँ, क्योंकि लखनऊ में स्ट्रगल करती है टीम्स, वहां पे स्लो एंड लो पिचेस होती है, तो 145 146 ऑल आउट होना ठीक है, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन वानखेड़े में एट मुंबई होम ग्राउंड, मुंबई फर्स्ट हैड केकेआर एट 57 फॉर 5। रिंकू जिसके लिए हम इतना मतलब कि इनजस्टिस और एंटिसिपेशन वो देख रहे थे कि वो मारेगा फोड़ेगा सिलेक्टर्स को दिखाएगा, वो आउट हो जाता है। दे ब्रिंग इन मनीष पांडे एज द इम्पैक्ट सब। वेंकटेश प्लेयर अय्यर प्लेड जेम ऑफ अ नॉक, क्योंकि रसल भी फायर नहीं कर पाता, रसल को इनफैक्ट वही रन आउट करा देता है, एंड ही हैज प्लेड जेम ऑफ अ नॉक, अटैकिंग ऑल द बॉलर्स, प्लेइंग विद टेल एंडर्स। दे गेट टू 169 which still looks कि हाँ ठीक है, मतलब कि 17-18 ओवर में मुंबई कमी है चेस कर वानखेड़े के ही हिसाब से, लेगी। तो कमी था, राइट। हाँ हाँ, बट उसके बाद कुछ अनरियल होता है, मतलब कि केकेआर की बॉलिंग, एवरीथिंग दे डू वर्क्स आउट। नारायण आता है, चक्रवर्ती आता है, वैभव अरोड़ा आता है, स्टार्क आता है, और लास्ट देवर 4 विकेट मिसिंग ले हर्षित लेता है। राणा। देवर हाँ, मिसिंग हर्षित राणा, उनका फुल बॉलिंग लाइनअप में नहीं था। और क्या डिफेंड किया है भाई, मजा आ गया, मतलब केकेआर अलग ही लेवल की। और 12 साल ये- बाद लास्ट टाइम हाँ, केकेआर डिफीटेड मुंबई, इट वाज शाहरुख खान गॉट बैंड एंड सुनील नारायण वाज द मैन ऑफ द मैच वन दैट टाइम मैन, आल्सो। हाँ, तो मैं भी व्हाट। बोलना था कि देयर इज लॉट ऑफ हिस्ट्री हियर एज वेल, राइट, कि मुंबई हैज ऑलवेज, आई मीन, बीटन केकेआर आउट ऑफ देयर विट्स। हमेशा मुंबई हैज हैड सच एन अमेजिंग रिकॉर्ड। आई थिंक केकेआर या ने कुल गिनती के 7 या 8 मैच जीते हैं मुंबई के हाँ अगेंस्ट इन ऑल दीज इयर्स। हाँ, उसके बाद भी दे कम इनटू वानखेड़े एंड विन दिस गेम, शोज हाउ बैड ऑफ अ बैड। डे मुंबई हैड। एंड ये मनीष पांडे ने भी रन्स बना लिए यार, पता नहीं, इट वाज जस्ट वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि फ्रॉम 57 फॉर 5 दे वेंट टू 140 फॉर 6। I think कुछ you can call out how sad or bad Mumbai's campaign has been this year. Nothing has been working out for them. And उस इस मैच के भी लास्ट में could you see कैसे, क्या बोलते हैं, हार्दिक पांड्या अलग बैठा हुआ था टीम से, ठीक है, अकेले बैठा हुआ था वहां पे, और बस ऐसे ऐसे कर रहा था पूरे टाइम। This shows how bad of a season Mumbai has had, how the team is in shambles, how nothing is working out, how the team is not working for each other. Traditionally, Mumbai has been a team who might start slow, but end में they're a team who could have, who do you expect to win 7 out of 7 to even qualify? But ये सीजन तो इतना खराब हुआ है कि comeback क्या, their performance has come from bad to worse. Oh my God. मतलब एक्चुअली क्या होता था कुणाल, पहले तो स्लो स्टार्ट्स होते ही थे मुंबई के, हमेशा और होता उसके बाद दे यूज्ड टू रीग्रुप एंड दे यूज्ड टू कम बैक, बट दिस टाइम दे हैव जस्ट गोइंग डाउन एंड डाउन, मतलब अब है, तो going down and लास्ट down. पोजीशन पे आ गई है। तो मतलब आई नेवर सीन सच अ सीजन फ्रॉम मुंबई, मतलब कि Yeah, I mean, इतना MI खराब। management has fucked up big. हम्म। I mean, they couldn't have made things worse. I mean, last 3 years have gone downhill for MI. अब एंड देखते हैं, अब तो this season is done for MI. But it's good to see resurgence of KKR. KKR के last 2-3 सीजन काफी खराब हुए थे, with Gambhir coming back and Shreyas Iyer taking up some responsibility. ये Sunil Narine making a huge comeback. It has been good to see KKR's resurgence. और बैटिंग कोर जो है एमआई का, मतलब कि इट्स ऑलमोस्ट एन इंडिया का प्लेइंग 11 है भाई। हाँ, रोहित, वही है। सूर्या, जो भी है, तिलक भी रोहित, खेल चुका सूर्या, है, ईशान, ईशान हार्दिक किशन पांड्या भी है, है। हार्दिक पांड्या है। तो इनको मतलब कि इस तरह से देखना, और हार्दिक पांड्या मतलब एटलीस्ट मुझे लगता है अब उसका बॉलिंग फॉर्म थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा है। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि ही इज बॉलिंग वेल नाउडेज। जहां तक मैंने देखा है कि लखनऊ वाले मैच में भी उसने अच्छी बॉलिंग की थी। एक्चुअली मुंबई कुड हैव डिफेंडेड दैट टारगेट, अगर वो इनसाइड एज उस मैच कर थोड़ा सकते लग थे, गया, लेकिन पूरा थोड़ा 9 रन क्लोज का। था, थोड़ा अनफॉर्चुनेट थी थोड़ा मुंबई, चांस था लेकिन उसमें। नारायण को भी बोल्ड कर दिया। लेकिन उसका बैटिंग इज द रियल कंसर्न, जहां पे वो बिल्कुल ही डेड वेट है, मतलब कि बैटिंग में तो बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं आ रहे हार्दिक पांड्या से। उसने दैट्स 50 बीन द रन भी बनाए प्रॉब्लम। सीजन अभी तक। आई थिंक हाँ, 50 तो बना लिए होंगे वैसे, बट ओके। नहीं नहीं, बनाया, 50 टोटल नहीं बना बनाए ली हैं, 50 कहाँ बनाए हैं? नहीं टोटल। बनाए हैं।
आई थिंक टोटल तो 50 हो गया। टोटल बना लिया है, टोटल बना लिया है। हाँ, टोटल एक मैच तो उसने बनाया था 43 लूजिंग 46 कॉज बनाया में था ही। उसने, 46 नॉट आउट। हाँ हाँ पीपल आर क्वेश्चनिंग पांड्या सिलेक्शन, बट इंडिया कांट डू मच। एक तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है हमारे पास, उसको तो लेके जाना ही होगा, ठीक है। प्लस जो स्क्वाड सेलेक्ट किया है, राइट, 10 3 फास्ट बॉलर्स लेके आ रहे हैं, पांड्या को तो खिलाना ही खिलाना होगा यार। वी नीड हिम टू बोल थोड़ा। एक्चुअली मुझे क्या लगता है ना कुणाल, ये जनवरी में टाइड हैड टर्न टुवर्ड्स दुबे, क्योंकि अफगानिस्तान का सीरीज, ऑल्दो इट वाज जस्ट अफगानिस्तान, लेकिन स्टिल दे आर अ डिसेंट T20 टीम। वहां पे मुझे लगता है दे टुक अ कॉन्शियस कॉल कि भाई हार्दिक पांड्या पे रिलाई नहीं कर सकते, एक तो ये बंदा आधा टाइम इंजर्ड रहता है, तो वी हैव टू लुक फॉर शिवम दुबे। उसको खिलाया, ही हैज प्लेड वेल इन दैट सीरीज, शिवम दुबे। बैटिंग बहुत अच्छी थी की थी, आई एग्री, हाँ बट बॉलिंग में ही स्टिल हैज अ लॉट टू प्रूव एंड डिलीवर, राइट। हाँ, बॉलिंग है, बट मुझे ऐसा लगता था ना कि क्योंकि उसके बाद पांड्या ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं तो जनवरी से फिट हूँ, मुझे तो सिलेक्ट ही नहीं किया अफगानिस्तान सीरीज में। मतलब ये नहीं बोला था, बोला था मैं जनवरी से ही फिट था। तो मुझे लगता है इन्होंने उस टाइम ही प्लान, बट क्योंकि हार्दिक हैज बीन पार्ट ऑफ द सेटअप एंड मतलब कि तो उसको लेना ही पड़ गया। मतलब वो एक सिलेक्शन कॉल था जहां पे मुझे लगता है आइदर दुबे या पांड्या को लेते और रिंकू को ले सकते थे, लेकिन उन दोनों को लेना था क्योंकि दोनों ही अनरिलायबल है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग या बैटिंग, जो भी देख लो, तो कहीं ना कहीं दोनों को ले लिया इन्होंने। और बट या मैन, एपिक कमबैक बाय केकेआर। नितिन, व्हाट्स योर रिएक्शन वो केकेआर वाले मैच पे? नहीं, अच्छा मैच था, मतलब फ्रॉम बीइंग 57 फॉर 5 और 6 जो भी था, वहां से एक तो मनीष पांडे ने आके दिखाया कि एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, जब जरूरत पड़ती है, कोलैप्स होती है, तो एक्सपीरियंस ही काम आता है। और जो हम्म। अभी वेंकी की हम बात कर रहे थे, तो वेंकी का रिकॉर्ड एमआई के अगेंस्ट बहुत अच्छा है। उसने 5 मैच खेले, शायद 300-350 रन बनाए हैं। तो हम्म। लास्ट ईयर उसने याद सेंचुरी बनाया था लास्ट मुंबई में ही। लास्ट ईयर भी शायद उसने बड़ा बड़ी इनिंग्स करी थी मुंबई सेंचुरी के बनाया था साथ। मुंबई में, सेंचुरी मारा था, हाँ, लेकिन मुंबई के हालांकि ऑलमोस्ट अगेंस्ट सेंचुरी 100 था। था उसका। हाँ। लास्ट ईयर, हाँ। उसके अलावा बॉलिंग यूनिट विदाउट हर्षित राणा बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो होप कि स्टार्क फॉर्म में रहे जो उसने परफॉर्म किया है। डाउट है, बट रहेगा तो केकेआर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वो। हम्म। भाई स्टार आ रहा है फॉर्म में, और एलिसा हीली भी आ गई है अब उसको सपोर्ट करने, हाँ, तो ही इज लुकिंग मेनेसिंग, डेंजरस। but Stark and Elise always do that, right? We have noticed it seen since years. I think Stark once left 2 matches in a series to go and watch her playing the World या Cup finals, which they या won. जैसे जैसे That's वर्ल्ड कप पास आएगा, ऑस्ट्रेलिया वाले brilliant. ऐसी फॉर्म में आते रहते हैं। ट्रेविस हेड के लिए फॉर्म खराब हो रहा है। हाँ, अरे ट्रेविस वर्ल्ड हेड। कप में आए। अब शायद हमको डेविड वार्नर दिखेगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए फॉर्म में। बट मैं एक और टीम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, सीएसके। दे हैव बीन फॉलिंग ऑफ द रेल्स। कभी हमने सोचा नहीं था, मतलब कि सीएसके इनिशियली जो बहुत अच्छा स्टार्ट ली थी इस सीजन में, दे मे बी इन डेंजर ऑफ मिसिंग आउट ऑन क्वालिफिकेशन। इनफैक्ट आज का मैच जो है उनका पंजाब के साथ, इट इज वेरी क्रूशियल फॉर देम टू विन। धर्मशाला से याद आता है धोनी के वो इरफान पठान को जो सिक्सेस आज धर्मशाला में मैच है। और अ, क्या प्रॉब्लम रही है सीएसके में, मुझे लगता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि उनके इनिंग्स को फ्लो नहीं मिल रहा है। एक तो डैरिल मिचेल को वो लोग जो मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, he is getting stuck most of the times. Then suddenly they are sending Jadeja at number 4 because और they want to prolong the innings. And उसके बाद जडेजा आउट हो जा रहा है, तो दे हैव टू यूज एन इम्पैक्ट सब जो बॉलिंग में यूज करना कर सकते थे। एंड रूट कॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज एम एस धोनी कैन बैट ओनली 2 overs। मैं एम एस धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन यार ये 2 ओवर के, उसके 2 ओवर के चक्कर में मुझे लग रहा है पूरी टीम का वो बिगड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है वो 2 ही ओवर बैट करेगा, तो बाकी हम लोग लाइक दे आर लाइक ऑल आउट बिफोर दैट, कि भाई उसके पहले हम ऑल आउट हो सकते हैं। बस धोनी इज लाइक नंबर 10 या नंबर 11 बैट्समैन हमारा। तो बट वही है मेरा यार, यहाँ वो पे नहीं, इट्स नॉट वर्किंग। एक हाँ मानना है कि अगर हम सीएसके की बैटिंग देखें लास्ट 2 साल में, तो रहाणे वाज डूइंग गुड एट नंबर 3। हाँ। आप अगर मिचेल को खिलाना ही है, तो मिचेल से ओपनिंग करा के रहाणे को 3 पे ही खेलना चाहिए, जो मेरा एक मानना है ये बात। हम्म। एंड वुड यू रहाणे गाइस ओपनिंग थिंक, कर नहीं रहा अच्छा। हम्म। या कुणाल? हाँ, I was thinking, would you guys think कि I was thinking कि रचिन रवींद्र को थोड़ा और एक्सटेंडेड रन दे देना चाहिए था। I mean, he's a up and coming player still, right? He's a very young player. He can be groomed to like a big player for CSK in the coming years. उसका फॉर्म थोड़ा ही खराब हुआ था, थोड़ा उसको एक्सटेंडेड रन दे सकते थे, नहीं? What do you guys think? या मुझे नहीं लगता, देख T20 में तो ऐसा होता ही रहता है कि समटाइम्स, यू नो, व्हेन यू आर टेकिंग दैट रिस्क,
यू गेट आउट। तो भाई तुम उसको ड्रॉप करके तुमने रहाणे को ओपन करवा दिया, जो कि अच्छा कर रहा था मिडिल ऑर्डर में लास्ट ईयर। उसने कौन सा अच्छा कर दिया है? ही इज ऑल्सो बिन फ्लॉपिंग बिग टाइम। मैं तो उसको ड्रीम इलेवन में कैप्टन बना रहा हूँ, वो साला हरा रहा है मेरे को हर मैच सीएसके का। तो ही इज बिन फ्लॉपिंग बिग टाइम। मुंबई इंडियंस जहाँ पे वो अच्छा खेलता था वानखेड़े में, वहां पे भी इस बार वो नहीं खेल पाया। तो आई डोंट नो। एंड ये सब हो रहा है मिचेल के लिए, क्योंकि मुझे लगता है फ्लेमिंग मिचेल को बहुत ज्यादा लाइक करता है। वो चाहता है वो टीम में सेटल हो, खेले। बट प्रॉब्लम है मिचेल ने एक मैच के अलावा बाकी सारे मैचेस उनको डुबा दिए हैं, क्योंकि he is not that player who can get going from ball one, and CSK needs someone like Dubé. अगर तुम देखो कि इनका दुबे डिपेंडेंस, सीएसके इज सो मच दुबे डिपेंडेंट, लाइक एलएसजी इज सो मच पुरान पुरान डिपेंडेंट। इन दोनों प्लेयर्स के बिना ये टीम्स कोई भी मैच नहीं जीत सकते। इनफैक्ट एलएसजी तो लास्ट मैच में एस्टन टर्नर को खिला रही थी, सबको खिला रही थी, फिर भी इट केम डाउन टू दैट, पुरान के कुछ क्रूशियल हिट्स। तो ये दोनों टीम्स मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है दुबे और पुरान पे, लखनऊ एंड चेन्नई। हाँ, प्लस डैरिल मिचेल पता नहीं, मुझको तो टी20 प्लेयर वैसा नहीं लगता यार। हम्म। नॉट रियली। और ओडीआईज में उस इज रियली गुड, नॉट अ और उसको टी20 प्लेयर। ऑलराउंडर बुलाते हैं, बट वो बॉलिंग भी कभी हार्डली यू यू मे हैव सीन मतलब हिम आईपीएल बॉलिंग। में तो नहीं करेगा ना bowling, हाँ। वो तो। हम्म। तो सीएसके, एनी अदर टीम्स यू वांट टू टॉक अबाउट? मतलब गुजरात टाइटंस हैव रियली संक बैडली। गिल का घमंड जो था कि मैं तो प्रिंस हूँ, ये हूँ, नेवर काउंट आउट जीटी उसने बोला था। लेकिन जीटी भी अब लास्ट पोजीशन पे आ जाएगी। अगर एमआई और जीटी के बीच में, इट विल बी बिटवीन द लास्ट पोजीशन। एंड आरसीबी इज गोइंग अप लाइक वी डिस्कस्ड। स्वप्निल सिंह का जब से एडिशन हुआ है तब से आरसीबी एक भी मैच नहीं हारी है। वो लेफ्ट आर्म स्पिन करके दे रहा है, और बैटिंग में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। तो ओवरऑल व्हाट डू यू सी अदर टीम्स का? मतलब कि एक बार अगर आई हैव टू आस्क यू इफ। Yeah, so I wanted to talk about Delhi also a little bit. दिल्ली का बीच में हुआ था कि लग रहा था थोड़ा वो लोग फॉर्म में आ रहे हैं, हाँ फिर उसके बाद अगेन आई थिंक दे लॉस्ट अ कपल ऑफ मैचेस, राइट? दिल्ली ने, हाँ, दे लॉस्ट द लास्ट मैच अगेंस्ट केकेआर। हाँ, दे लॉस्ट टू केकेआर। यस। हाँ, with हाँ। Rishabh Pant playing थोड़ा, it felt कि maybe Delhi can do something, but what are your thoughts on Delhi though and their qualification? Can they still pull something out of the box? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, वो लोग भी ना जेएफएम के वजह से थोड़ा मोमेंटम पकड़ लिए थे, क्योंकि जेएफएम वाज प्लेइंग सम आउटस्टैंडिंग नॉक्स। Really? जैसे एमआई के अगेंस्ट Maybe, उसने खेला। हाँ, आई डोंट थिंक ऋषभ पंत इज स्टिल एट द बेस्ट। वो सिर्फ एक इनिंग्स था अगेंस्ट मोहित शर्मा का वीक डेथ बॉलिंग, जिसको दिल्ली के छोटे ग्राउंड्स में उसने कैपिटलाइज कर दिया। बट मतलब टू मेनी चॉपिंग एंड चेंजिंग। मतलब अक्षर पटेल को कभी इधर थ्री पे, कभी नीचे, कभी जेएफएम खेल रहा है, कभी वार्नर खेल रहा है। मतलब दे हैव चेंज्ड अ लॉट। कभी नॉर्किया खेल रहा है, अब वो लिजर्ड विलियम्स को खिला रहे हैं। मतलब कि आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर टीम इन इन आईपीएल जो इतने ज्यादा चेंजेस करती है। एंड समहाउ मुझे लगता है पॉन्टिंग और द कैप्टन पंत Ganguli. हैज टू टेक द ब्लेम कि इतने ज्यादा आपने कॉम्बिनेशन चेंज किए हैं। जेएफएम को डिस्कवर करते करते ही आपको 6 मैच आपके निकल गए थे। आप वहीं पे मतलब ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर हो चुके थे। लेकिन नाउ दे हैव वन सम 4 out of 6। आई रिकॉग्नाइज दैट, एंड दे हैव सम गुड प्लेयर। Tristan Stubbs is actually coming good for them. He has saved them in many matches. His contribution in this IPL will be underrated, क्योंकि बहुत लोग शायद नोटिस नहीं कर रहे होंगे कि वो बहुत अच्छा बैटिंग फील्डिंग में भी बहुत कंट्रीब्यूट किया उसने। बट दे हैव नेक्स्ट मैच वर्सेस आरआर एट होम। तो देखते हैं क्या होता है। एंड या बट आई डोंट मेक मच ऑफ दिल्ली टिल नाउ। Okay, cool. I guess uh, so. We या can end with maybe. Not sure if Nitin wants to say anything about any team. या आई Cool. थिंक So एक maybe और we चीज can. मेरे लिए ये वीक में बहुत अच्छा रहा कुणाल, दैट संजू सैमसन इज फाइनली सिलेक्टेड फॉर टी20 स्क्वाड। अरे हाँ, वो आई तो एम भूल ही गया, ये शिखर का सपना सच हुआ। आई एम सो हैप्पी, बट रियली सैड कि रिंकू नहीं है टीम में, और संदीप शर्मा नहीं है, ये लोग नहीं है। तो आई हैव मतलब बहुत कम चांसेस मुझे लग रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। व्हाट्स योर 2 minutes इफ आई आस्क यू टू मतलब जस्ट समराइज द स्क्वाड? व्हाट्स योर रिएक्शन, your opinion on the squad? Yeah, so
Yeah, and I was really disappointed to see the selection, especially the bowling and Rinku Singh getting dropped out. I thought Rinku Singh is a player we really need to develop, a hard-hitting finisher whom we really, really wanted desperately since all these years. और bowling, I'm really disappointed with the bowling. We needed one more pacer at least. हम लोग अभी भी Hmm. ऐसे पेसर्स लेके जा रहे हैं, and yeah, our team has been the same since last 3 World Cups. It just does not feel Yeah. right. We are not able to drop our superstars, but ठीक है, अब कोहली को हम लोग ड्रॉप तो नहीं कर सकते, राइट? कोहली को ड्रॉप करना इज, नहीं, कोहली को ड्रॉप करना मतलब आई रोहित मीन को भी ड्रॉप करना हो जाएगा ना, वही तो बात है। इट्स आइदर बोथ ऑफ देम, मतलब सिलेक्टर्स वही बोल रहे हैं, इट्स आइदर बोथ और वन ऑफ देम। सो इट्स आइदर बोथ और नन ऑफ देम, सो इट्स लाइक दैट। तो वही प्रॉब्लम हो रहा है, बट ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ हाँ,